Deprivation points was introduced in 1972, but no admission took place on the basis of the deprivation points. So I'll tell you as to what was the sequence of all that. But before we look into the nitty-gritty of the deprivation points, it's important for us to, in fact, take note of three important aspects. One on which I think Aisha would, she knows much better than I do, is a kind of a debate that took place in the parliament before JNU was set up. The urge to create an institution which will get rid of the Eurocentricity and the colonial mindset. What we had was a kind of a template which was handed over to us by the colonial masters. The acts of the universities which existed at that particular point of time, even in 1969, most of the university acts were created by the Britishers, and we were just photocopying them and introducing them as and when the new universities were set up. So, an act which could talk about a variety of things, and she will elaborate on that. But two or three important things, which in fact it talks about is the national character of the university. It sounds very simple that every institution can be a national university or it can have a national character. But unless and until you have the admission policy which could be proactively engaged in introducing a kind of a situation which would attract students from all over the country. When I came to JNU, although I was pretty aware by the standards of the town that I came from in Bihar, and Bihar doesn't have a town. It's an extension of the villages that you have. Swandho mein khana raja, sorry, I shouldn't be using this phrase, but I thought that I knew a lot about India, being a geographer by training. So when I landed up the first class, I could see my friends from Maharashtra, from Kerala. The only state which was missing was the state from which our Prime Minister comes. Otherwise, all the states were represented there. The diversity that we could see. I was a topper from my university, so-called topper, whatever it means, in the scheme of merit, or whatever that merit means. And the opportunity to grow with them, with my classmates who came from Marathwada, who had a story of drought in Marathwada. Somebody, Arun Dalvi from somewhere in Ratnagiri. I had friends of that kind, who really, with whom you could speak and you could really get to know what India was all about. The hostels were not divided in terms of the BA hostels or MA hostels or senior hostels or junior hostels, science hostels, and so on and so forth. It was a mix of all kinds of students from BA to MA to all staying together, listening to one another. I can't really put it in words as to what I really mean. I mean, some of you must be experiencing that in your hostels, rethinking about who you were and what you are becoming. It was a process which was conceived by a set of people
who really thought beyond what was being talked about even in the parliament. They thought about creating an architecture where when the students get out from their hostels, they meet their teachers. You know, that the hostel should not have a separate campus and the teachers should not have their physical separation was addressed by each 3 hostels surrounded by faculty houses. A residential campus which was not only seen in terms of naming of the rivers and Uttarakhand and Dakshinapuram and Paschimabad and whatever. These are directional kind of but the understanding that, we don't want to create a kind of a separation between and among students and between the teachers and the students. I stayed in Kaveri, and यंग तो होते ही हैं तो शोर करने का भी मन करता है, जैसे कि वो कहानी है ना कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे लौट के चिल्लाने की आदत है। वो जो कहानी बचपन में मैंने पढ़ी थी, तो जब हमारी बहुत खुशियां होती थी तो हम भी शोर करना चाहते थे, और शोर करने की स्थिति में फौरन ख्याल आता था कि इसी सड़क के उधर तो हमारे सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, वो रहते हैं, है ना, हमारे टीचर्स पास में रहते हैं, मार्च का महीना है, हम हॉस्टल वीक मना रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी एग्जाम है। ये सेंसिटिविटी कि ये मेरा घर है लेकिन मेरा पड़ोस भी है, उसके साथ भी हमें रहना है, ये इसके आर्किटेक्चर में है। और इसको सोचा किसने? उस आदमी ने सोचा जिसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट एएमयू में कर लिया था पहले, और इत्तेफाक से, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं उनका एक विद्यार्थी भी रहा। मेरे ही सीएसआरडी के वो संस्थापक थे, उनका नाम है प्रोफेसर मुनीस रजा, जिन्होंने एएमयू में मैंने और शमीम ने मिलके पिछले साल या उसके पिछले साल 25 में, हाँ 25 में हमने पूरी फोटोग्राफी की है उस इंस्टीट्यूशन की जिसको कहते हैं लोग कि ये मुनीस रजा ने बनाया था। दैट वाज कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एजुकेशन, yes, and then that grew into school of music and whatever, and Kennedy Hall is there, where Nasruddin Shah and all these great actors grew up. Sir, that's not the point which I'm really talking about. I'm talking about the fact that there was no template and there were people who were prepared to think out of the box, so that that colonial mindset of attendance falling short and students being denied to taking the examination, that students should be forced to attend classes even though the teachers could be delivering such boring lectures, that you would like to rather sleep or maybe commit a suicide. So if you have that kind of a situation where there was a conscious attempt to in fact remove all those kinds of limitations structurally and institutionally, and that was the most important thing. I come from, my background is social geography. Many people would say geography बोलो ना, social geography क्यों बोलते हो? क्योंकि geography से बात समझ में आती है, social geography से confusion होता है। social geography भी social हो सकता है, मतलब पहाड़ भी social हो सकता है क्या? मैदान भी social हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमने ये जो बातें, 2 बातें आपको, जो तीसरी बात मैं रखना चाह रहा था वो ये है कि
टीचर्स उस समय सब जो आए थे वो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के नहीं आए थे, और ना ही उस समय के छात्र जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आए। जो पहला यूनियन बनता है जेएनयू एसयू का, उसके प्रेसिडेंट थे कोशी, वी.सी. कोशी, और भागीरथ प्रसाद वॉज दी जनरल सेक्रेटरी. Sharath was a student and also was. I got this information from a person who was very active those days, Ramesh Dikshit. You know, so Ramesh Dikshit, I spoke to him yesterday, and the last few days we have been in touch because I'm doing a book on Professor Munis Raza's writings. So I needed some information from him also. He contributed a piece in Hindi. So a kind of a system which in fact was created here. Some of you are only aware by the names of it, may not have had occasion participating in, where a system was introduced where institutionally it became important that the students become part and parcel of all decision-making process, including commenting on the curriculum, barring evaluation. Everything was open and students were invited, encouraged through SFCs. SFCs have become a kind of a matter of past. I remained SFC for nearly 7 years continuously, that from MA to MPhil to PhD. वो तो कुछ लोग कहते थे भाई अब हो गया, बहुत हो गया, अब चलो तुम, है ना, ये तो कोई इसके बाद पेंशन नहीं मिलने वाला. अगर शायद पेंशन मिलता तो अभी तक मैं एसएफसी रहता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और नहीं होना भी चाहिए. तो हम वापस जाते हैं 72 में, जब ये समझ, और वो समझ नॉर्थ इंडिया के छात्रों को ज्यादा समझ में आई जब ये बहस होने लगी थी. और ये बहस की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के छात्रों से, क्योंकि वहां पे एक मूवमेंट था उसके पहले से जो डिप्रीवेशन पे बात कर रहा था. हालांकि मूवमेंट तो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं ना कहीं हो ही रहे. ये बहुत बड़ी बात थी कि अमीर और गरीब तो है ही एक तबका, जातियां अपने आप में बहुत हैं, लेकिन एससी एसटी बना देने से या स्टेट्स के अंदर कहीं कहीं पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन देने से डेप्रिवेशंस खत्म नहीं हो जाते, डेप्रिवेशंस पूरी तरह से एड्रेस नहीं हो रहे. तो पहला तो ये था कि डेप्रिवेशन को हमें एड्रेस करना है, और डेप्रिवेशन कैसे एड्रेस होगा, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी. इट वॉज अ बिग चैलेंज. अगेन the person who was putting fuel into the fire was Munis Raza, who would say it is possible. You know, you tell me, I can give you district level deprivation data. Later on, there was a work which some of you can perhaps see in the library, Indian Economy, the Regional Dimension, which in fact caters to this kind of a proposition, which he experimented with using the NSSO data. We wanted to go down to creating an index of deprivation right up to the block level. But there were limitations. Number one, we do not have the variety of data at the block level, although it is collected but never published by the Census of India. And blocks were basically, they are known as the development blocks. हिंदी में उसको प्रखंड, प्रमंडल, कुछ कुछ कहीं कहीं पे कुछ कुछ कहते हैं.
प्रखंड ज्यादा कहते हैं, मुझे मेरे ख्याल से मेरे बिहार के यूपी में खंड कहते हैं, हमारे यहाँ प्रखंड कहते हैं, कहीं और कुछ और एक बार लगा देंगे कुछ और आगे पीछे, तो कोई बात नहीं, कुछ भी कहें, लेकिन जिले और प्रखंड जो है वो एक तरह से जिले के एक नक्शे कदम पे ही है, क्योंकि जो डिसबर्समेंट होता है वो जिलों को वो जिले का कलेक्टर फिर तय करता है। तो हमने पहले तय किया कि हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग स्टॉक और एस्पिरेशंस को एड्रेस करे, पहला। दूसरा कि हमें ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो कि मल्टी फैसेटेड हो, यानी कि जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, जिसमें जबरदस्त इंटरसेक्शनैलिटी हो, उनका एक दूसरे से जुड़ाव हो। खाना कम खाया तो बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है, बीमार पड़ेंगे तो काम करने नहीं जा पाएंगे, काम करने नहीं जा पाएंगे तो 2 दिन की दिहाड़ी गई, 2 दिन की दिहाड़ी गई तो घर के बच्चे का स्कूल का फीस नहीं होगा, उसके दस्त का इलाज नहीं होगा, उसका वो ड्वार्फ हो जाएगा या उस स्टंटेड होगा। ये जो विशियस सर्किल ऑफ डेप्रिवेशन है, हमें ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए थे जो कि एड्रेस करे, और साथ ही साथ जिनके अंदर वो सेंसिटिविटी के साथ साथ एक और क्वालिटी हो, वेरिएबिलिटी हो, है ना। जब वेरिएशन नहीं होगा, सब डिस्ट्रिक्ट में एक ही जैसी हालात हैं, तो हम फिर कर क्या रहे हैं, तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमको तो एक ही जैसा हालात नहीं चाहिए, हमको तो वेरिएशन चाहिए। इसीलिए बहुत हम पे प्रेशर डाला गया था उस समय, और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि 1991 से जब दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ तो इंडेक्स बनाने वालों में मैं ही था। मतलब हर साल 91 मैंने किया, 2001 मैंने किया, 2011 मैंने किया, 2021 का सेंसस नहीं हुआ इसलिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि उसमें वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। हमें कहा गया कि आप रूरल पॉपुलेशन ले लीजिए, है ना, क्योंकि आप रूरल को एड्रेस करना चाहते हैं। 1971, 1981, 1971 में रूरल पॉपुलेशन का वेरिएशन मार्जिनल था। पूरे देश में आप देख लें, प्रिडोमिनेटली हम रूरल हैं, तो फिर हमको रूरल ही लेना है, तो हम दूसरे तरीके से इसको हम देख सकते हैं। तो इसे बहुत जद्दोजहद हुई, और हमने जो 3 इंडिकेटर्स उस समय सेलेक्ट किए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक तो लिटरेसी, और हमने जनरल लिटरेसी लिया। अब आप कहेंगे आप फीमेल लिटरेसी आप लेते तो और अच्छा होता, बिल्कुल अच्छा होता, लेकिन फीमेल लिटरेसी में वेरिएशन नहीं था, हर जिला एक दूसरे की तरह था। आप 71 की बात कर रहे हैं हम, तो हमने जनरल लिटरेसी लिया क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी थी। लिटरेसी एक स्टॉक है, स्टॉक वेरिएबल है, इतने लोग लिटरेट हैं, है ना। लिटरेसी का एक और डायमेंशन है जो आजकल लोग उस तरह का रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन कभी किसी मित्रों को, हमारे कुछ औरों की बात छोड़िए, इकोनॉमिस्ट फ्रेंड है हमारे कौशिक बसु साहब, सुब्रमण्यम के साथ मिलके एक पेपर लिखा उन्होंने, प्रॉक्सिमेट लिटरेसी। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं घर में पढ़ा लिखा हूं तो मेरी माँ कुछ मैं चिट्ठी पढ़ा सकता हूं, मैं अपने भाई के फॉर्म भर सकता हूं, पड़ोस का भी थोड़ी मदद कर सकता हूं। प्रॉक्सिमेट लिटरेसी का जो एडवांटेज है, एक आदमी घर का पढ़ा हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बनिस्बत के उस घर के जिसके अंदर कोई नहीं पढ़ा हुआ।
है ना? गांव में एक पढ़ा है, नहीं तो मास्टर जी के पास जाओ और मास्टर जी चेहरा देख के कंटेंट बदल देते थे। मतलब आई एम अ विटनेस टू दिस, सो आई कैन टेल यू, आई हैव डन नियरली 500 विलेजेस में तो मैंने सर्वे किया ही है, और गांव में ही किया है, इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान है। हालांकि हिंदुस्तान इस 500 से कहीं ज्यादा बड़ा है, हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो लिटरेसी के बहुत सारे डायमेंशन थे जो कि हमें दिख रहे थे। कोई उसके लिए हमने यहां तक कोशिश की कि लिटरेट्स विदाउट स्कूलिंग, उसका डेटा भी है, वो भी हम ले, लेकिन हमने देखा कि वो 1.5%, 2%, वो वही बच्चे जो कि अभी अभी थोड़ा सा लिटरेट हुए हैं उनका है, और कुछ ज्यादा उसमें मिल नहीं रहा, तो हमने वो छोड़ दिया। तो ये तो एक इंडिकेटर हमको मिला साहब, और ये सेंसस का इंडिकेटर है। सेंसस और एनएसएस में फर्क है। सैंपल सर्वे है वो है एनएसएस, और सेंसस हर घर से, हर परिवार के मेंबर का इंफॉर्मेशन है, उम्मीद है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हिंदुस्तानी सेंसस 2011 तक तो मेरे ख्याल से अपने बलबूते पे वो बहुत ही अच्छा डेटा इकट्ठा करके देता रहा है। हम उसी के आधार पर सैंपल सर्वे करने जाते हैं, विलेजेस सेलेक्ट करते हैं, बहुत कुछ आइडेंटिकल, बहुत कुछ मिलता जुलता देखने को मिलता है। इसलिए सेंसस खराब है, ये वो लोग कहते हैं जिनको सेंसस से डर लगता है, जिनको फिगर से डर लगता है। दूसरा जो इंडिकेटर हमने लिया साहब, देखिए, हमने लिया, ये तो प्रोग्रेसिव इंडिकेटर है लिटरेसी, फिर दूसरा प्रोग्रेसिव इंडिकेटर लिया। देखो, हम कह रहे हैं इसको डिप्रीवेशन इंडेक्स, लेकिन हम ले रहे हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स। परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, हमारा फोकस किस पे है? वर्किंग क्लास। चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉन एग्रीकल्चर, उस समय की थियरी, इकोनॉमिक थियरी हमारे मित्र बताएंगे, है ना? हम लोगों को यही पढ़ाया गया था, जितना भी पढ़ा था। हालांकि अंग्रेज, हमारे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे वो पढ़ाते कम थे, कहते थे मुझे या हम सबों को, जेएनयू में नहीं, बिहार वाले कॉलेज में, कि आप सब जो है वो वो किसकी सवारी जो है वो होता है, वो उल्लू, लक्ष्मी, लक्ष्मी की सवारी। तो कहते थे आप लोग तो सब हमारे लिए लक्ष्मी की सवारी हैं, यानी कि उनको मिलता है पैसा और हम बनते हैं उल्लू। तो कुछ ऐसा ही था। एनीवे, थोड़ा बीच बीच में मजाक चलता रहे, नहीं तो बहुत सीरियस मामला हो जाएगा। थोड़ा दमखम बने रहना चाहिए। 70 साल का आदमी बोल रहा है तो थोड़ी सी, तो ये जो इंडिकेटर हमने लिया, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कितने लोग, यानी कि बोझ कितना कम हो रहा है एग्रीकल्चर, है ना? देखो, रीजनल डेप्रिवेशन को मेजर करते समय हमने रीजनल ज्योग्राफी नहीं करी, हमने ये दफा बताने की कोशिश की कि बहुत कुछ होता है जो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, तब वो मैक्रो लेवल पे होता है। लेकिन वो हर जिला हमारे देश का अपने आप में एक मैक्रो सिस्टम है। खेत में कटाई हुई, कटाई के लिए डिमांड बढ़ा, काटने वालों की, बोझा बना, बोझे की झराई हुई, उसके बाद फिर वो पलदार लेके या वो बैलगाड़ी में या टायर गाड़ी में सामान जो है वो, मैं 70 की बात कर रहा हूं। आप लोगों में से लोग, आप मैंने तो बैलगाड़ी भी नहीं देखी होगी और टायर गाड़ी भी नहीं देखी होगी। वो लेकिन बैल ही खींचता था, और वो बाजार आता है, बाजार में आते ही पलदारों की डिमांड हो जाती है, वो पलदार जो है ना उसको वहां रखता है। मतलब आप देखो कितना मल्टीप्लायर हो रहा है यहाँ पे, इनकम मल्टीप्लायर हो रहा है, वहीं पे हो रहा है।
इसके पहले कि वो कहीं और जाए, मंडियों में जाए, छोटे लेवल पे, इसको हम कैप्चर करना चाहते थे। तो हमने सोचा इसको कैप्चर करने के लिए और क्या करें भाई, तो हमने कहा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वर्क करते हैं पर हेक्टेयर, है ना। जीएस भल्ला साहब जिंदाबाद। एकमात्र स्टडी है, आपको अगर मौका मिले तो देखिएगा, 1961 to 63 ट्रेनियम, 71 to 73 ट्रेनियम, 81 to 83 ट्रेनियम, 91 to 93 ट्रेनियम, 2001 to 2003 ट्रेनियम। हर 3 साल का ट्रेनियम, यानी कि 3 साल के लगातार। कभी कदा हो सकता है 1 साल में फसलें मारी जाए, तो वैसा तो हमको लेना नहीं है। तो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 3 साल के एवरेज से हुई, 1-2 फसलों को लेके नहीं किया, 36। आप देखिए जेएनयू ने कितनी मेहनत करी, 36 क्रॉप्स को हमने लिया, जो भी क्रॉप्स जहां कहीं पे भी है, और एफसीआई या गवर्नमेंट जिस रेट पे खरीदने के लिए तैयार है वो रेट हमने लिया, उससे उसको मल्टीप्लाई किया, और 3 इंडेक्स बनाए हमने। 3 इंडेक्स नहीं, 3 कॉलम्स ऑफ वेरिएबल्स जो हमारे थे, मतलब इंडिकेटर्स हमारे तैयार हो गए। और ये क्या है, ये दिखा रहा है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन रूपी टर्म्स, कितना माल आ कितना रहा है। क्वांटिटी भी आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, लेकिन हम मनी टर्म्स में देख रहे हैं। फिर इसको हमने कंपोजिट किया। कंपोजिट करने में एक परसेंटेज है, एक रुपया है, वो थोड़ा टेक्निकल मामला है, लेकिन एक लाइन में बोल देते हैं, स्केल फ्री हम करते हैं। स्केल फ्री हमने किया और हमने वो इंडेक्स बनाया, और मेरा जिला जो है वो सबसे निचले पायदान पे दिख गया, है ना। मेरे नॉर्थ बिहार का किशनगंज जो है वो और भी नीचे दिखा। मजेदार बात ये हुई कि जिन सारे हम स्टेट्स में कहते ये तो बड़ा उन्नत स्टेट है, वहां के भी कुछ जिले जो हैं वो उसमें आए। कहने का मकसद, मतलब ये कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। एक डेप्रिवेशन केवल जाति की नहीं है, डेप्रिवेशन केवल रिसोर्सेज की नहीं है, डेप्रिवेशन केवल कल्चरल नहीं है, डेप्रिवेशन केवल सोशल नहीं है, डेप्रिवेशन सिस्टमिक है, और सिस्टम जो है वो बहुत तरीके से ऑपरेट करता है। तो ये इंडिकेटर्स को ऐसे ही मत देखिएगा कि इंडिकेटर है जो आपने 4 इंडिकेटर्स का नाम लिया, उस पे भी मैं तवज्जो थोड़ी सी, हालांकि आई वुड नॉट क्रिटिसाइज बिकॉज एटलीस्ट देयर इज समथिंग। हाँ, Certainly also you want to criticize. शौचालय आई वुड क्रिटिसाइज, बट सम पीपल मे फोर्स मी टू गो टू शौचालय जाए, है ना। नहीं, आजकल समोसा मना है। तो ये 3 हमने इंडिकेटर्स लिए और 3 को हमने कंपोजिट किया। आपको जान के ये खुशी होगी कि जो लेटेस्ट एक्सरसाइज हुआ था सच्चर कमीशन के बाद और मिश्रा कमीशन के बाद ऑन डेप्रिवेशन, जिसमें योगेंद्र यादव और बहुत सारे लोग हमारे सेंटर के कुंडू, इट्स कॉल्ड कुंडू कमेटी, जो इंडेक्स वो बनाए वो भी डेप्रिवेशन इंडेक्स कहलाता है, डिस्पैरिटी इंडेक्स कहलाता है, और वो इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है। और जो एनएसएस, जो हमारे नीति आयोग वाले हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जो बात करते हैं, वो बहुत हद तक इसी समझ का हिस्सा है। तो हमने ये कहा कि एक ऊंची जाति का व्यक्ति
गांव में रहा है, गांव के स्कूल में गया उसका बच्चा, पैसे उसके पास काफी हैं। हालांकि दूसरा घर वाला जो है वो कलकत्ता में जाके एक घर ले लेता है और वहां उसका बच्चा जो है वो रहता है, और एक पुजारी जो है वो खाना बनाता है। शरद चंद्र का उपन्यास पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कुछ इस तरह का मिलेगा। और उपन्यास पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे शहर में आ जाइए, अभी भी आपको छात्रावास मिलेंगे, ब्राह्मण छात्रावास, सैनी छात्रावास, है ना, प्रज्ञा समिति छात्रावास। तो जिनके पास और जिस कम्युनिटी के पास वो रिसोर्सेज थे, जो कैपिटल था, सोशल कैपिटल बहुत अलग नहीं है फाइनेंशियल कैपिटल से, और वो कल्चरल कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये तमाम सारे कैपिटल को आप देखेंगे कि एड्रेस करने की कोशिश उस इंडेक्स ने किया था जो 72 में लेकर हम गए थे, हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर्स। लेकिन I will not be doing justice if I don't talk about the fact that this was what we call was a regional level indicator. लेकिन हालात रीजन में होने के साथ साथ हम सबों की जिंदगी में भी होते हैं, हमारे घरों में होते हैं। हमारा बड़ा भाई पढ़ा लिखा है तो शायद मैं भी पढ़ लूं, है ना। हमारी दीदी पढ़ी लिखी है तो शायद मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मतलब वो तो डिस्पैरिटी जो जो मेल फीमेल के अंदर होता है। तो हमने सोचा कि हाउस होल्ड लेवल डेप्रिवेशन को भी कैप्चर करते, 72 वाला इंडेक्स रीजनल और हाउस होल्ड लेवल, फैमिली नहीं मैं कह रहा हूं, हाउस होल्ड कह रहा हूं, हाउस होल्ड लेवल डेप्रिवेशन को भी कैप्चर करने की कोशिश की गई, और वो चला 81 तक, या मेरे ख्याल से 80 81 तक चला। उसमें क्या क्या थे, हाँ जी, 82 तक चला, हाँ ओके, हाँ आपको ज्यादा होगा, मैं थोड़ा सा भूल गया। हाँ, तो वो उसमें क्या था, उसमें क्या था, पिताजी, परिवार के पास कितनी खेत है, तहसीलदार का चाहिए सर्टिफिकेट, पिताजी की इनकम क्या है, या घर में जो भी टोटल इनकम क्या है, पिताजी नहीं, टोटल पारिवारिक इनकम क्या है, वो तहसीलदार से हम बनवा के लाते थे। फिर छात्रों से पूछा, जैसे मैंने जब फॉर्म भरा, घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी का, ये पढ़े लिखे व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है ना। जब लोगों ने अभी वो बैकवर्ड कमीशन की बात काका साहब कलेलकर के बाद लोग भूलते जा रहे थे, जेएनयू यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की बातें कर रहा था। उसने स्टेट की बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट मंगवाई, क्योंकि तब तक ज्यादातर स्टेट्स ने बैकवर्ड क्लासेस पे रिजर्वेशन का एक तौर तरीका शुरू कर दिया था। मुझे याद है बिहार में यहाँ पे आने के पहले वहां पे 2 एनेक्चर से, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2, है ना, ठीक वैसे जैसे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 हमारे यहाँ है, वहां पे एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 था। कुछ लोगों के पास संसाधन थे, यानी कि छोटे जमीन थी, छोटी जोत थी, लेकिन उनमें घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये मत भूलिएगा कि 60s में आते आते ये वर्ग जिसको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, इसने एक काम किया, उसने कहा नंबर में तो हम इनसे आगे हैं, और लाठी हम इनके लिए चलाते हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो ये समझ जैसे आया, और ये समझ कहां आ रहा है, बिहार में आ रहा है, उसके बाद यूपी में आया, है ना। और कौन बने साहब हमारे यहाँ, दारोगा प्रसाद राय, है ना।
वो बढ़ के आ गए। मतलब यादवों ने देखा कि हम 25% है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर हम थोड़ा सा कुर्मियों के साथ मिल जाते हैं तो हम ऑलमोस्ट 30% हो जाते हैं, कुछ और से मिल लेते हैं 35%। 35% ऑफ द वोट्स यू हैव वॉन। ठीक है, तो आप इसीलिए देखेंगे 1966 या 67 महामाया प्रसाद या महामाया प्रसाद सिन्हा के बाद वहां पे आया राम गया राम की सरकारें रही हैं until the time अब्दुल गफूर became the खैर वो एक स्टेट स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। लेकिन मकसद मेरा क्या है कहने का, मकसद ये है कि बैकवर्ड क्लासेस ने अपने नंबर के स्ट्रेंथ को एक डेमोक्रेसी में समझने की कोशिश की और उसने अपने पार्टिसिपेशन की बातें की। और वो यहां भी उन छात्रों ने बातें की कि बैकवर्ड क्लास के लिए भी होना चाहिए। तो ये जो इंडिविजुअल यानी कि हाउस होल्ड लेवल डिप्रीवेशन है जो आज नहीं है, ये और रीजनल डिप्रीवेशन मिला के 20 मार्क्स का टोटल होता था डिप्रीवेशन इंडेक्स। 30 नंबर का होता था इंटरव्यू और 50 नंबर का होता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने आया था। बारिश हो रही थी जैसे आज सुबह हुई है। तो ये बहुत लंबी बात ना हो जाए, बहुत और भी हमारे मित्र हैं बोलने वाले। इसमें समझ यही थी कि चाहे वो किसी कास्ट का हो, अगर गांव में रह रहा है और अगर वो सरकारी विद्यालय जा रहा है और उसी गांव का एक दूसरा लड़का सरकारी विद्यालय की जगह पे वो प्राइवेट स्कूल जा रहा है, तो आप उसी जिले में हैं लेकिन आपको डिप्रीवेशन नहीं मिलेगा अगर आप गैर सरकारी विद्यालय जा रहे हैं, निजी विद्यालय जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय गए हैं तो आपको ये मिलेगा। कोशिश ये थी कि हम सरकारी विद्यालय को मेन स्ट्रीम के तौर पे हम देखना चाहते थे और ये भी देख रहे थे कि वो डिप्राइव्ड हैं निजी विद्यालयों के मुकाबले, क्योंकि वो फीस नहीं लेते या उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है। तो एक रिलेटिवली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, वो बहुत सारे सारे पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बेनिफिट उसको मिलता है। जैसे लाइब्रेरीज ही हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया। और एक पिछड़े जिले में, मेरे शहर में या मेरे, आप अभी भी देख लीजिए किसी भी शहर में देख लीजिए तो आपको दिखेगा कि मतलब पब्लिक एमेनिटीज जो है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एजुकेशन को प्रमोट कर सके पब्लिक लेवल पे, लाइब्रेरीज हों या उस तरह की एक्टिविटीज हों, नहीं थे। तो फर्क तो था, है ना। दिल्ली के बच्चे में और पटना के बच्चे में फर्क था, पटना के बच्चे में और मुजफ्फरपुर के बच्चे में फर्क था। तो इन सबों को हम एक ही पायदान पे रख के नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने इसकी क्वार्टाइलिंग करी। और इसमें शुरू में 300 कुछ 370 71 हमारे जिले थे 70s में। तो करीबन आधे जिले, इसमें आधे से ज्यादा जिले, if I am not wrong, it was close to about 156, 157. More than that, they were being covered. So this was an instrument of providing inclusivity, providing everybody an opportunity, irrespective of wherever and whoever they were. So it was not just scheduled caste and scheduled tribe. Many people think that scheduled caste and scheduled tribe are indices
to address the question of poverty, which is absolutely wrong. Scheduled caste addresses the question of untouchability, and scheduled tribe addresses the question of physical isolation. Whether or not the person is rich or poor, that is not the consideration. One is stigmatized for ages, the other is isolated for centuries. Development has bypassed them, or whatever we call it. So therefore, we needed a larger kind of a canvas, a larger kind of a framework, where all, irrespective of whether I could be from a Rajput or a Brahmin family, but I have gone to a local school, I lived in rural area, I get those 4 or 5 points of deprivation marks that makes me compete with somebody in Patna or somebody in Delhi, and I get a chance, an opportunity to come to JNU, and I see the library and I go mad. इतनी किताबें भी होती हैं, किताबों में मतलब आश्चर्य की बात कि अभी भी यहाँ पे कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन अगर 9:15 तक आप पहुंचे लाइब्रेरी में तो सीटें नहीं मिलती थी। अब पता नहीं अब क्या हाल है, अब तो ऑनलाइन है, कोई बात नहीं। अब हम जाते हैं, थोड़ा नींद भी, दिन में भी सपने देखना चाहिए ना, और हम सब अगर इस उम्र में दिन में सपने नहीं देखेंगे तो क्या हमारी उम्र में देखेंगे, जब सपने क्या नींद ही नहीं आती। तो ये फिर हमने सोचा, और ये रिवॉल्यूशनरी था साहब, ये एक अलग रिवॉल्यूशन था। हर तबका, चाहे वो शहर हो, गांव हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, हर डिनोमिनेशन का जो सोशल कैटेगरी है उसमें महिला दबी हुई, मर्द की अपेक्षा। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस द बोर्ड गर्ल कैंडिडेट्स को एक अलग से 4 नंबर या 5 नंबर, अब आजकल 5 नंबर है शायद, उस समय शायद उसमें भी 5 ही नंबर था, हाँ 7, वो जो भी हो, नंबर में क्या है, सोच, हाँ ये सोच बड़ी बड़ी बात थी कि हमने ये किया। हालांकि मैं पर्सनली रूपा मंजरी घोष कमेटी का जब मेंबर था तो मुझे थोड़ी दिक्कत थी, हाँ आपको भी थी, इसलिए कि मैंने कहा कि होता क्या है कि मेट्रोपॉलिटन गर्ल जिसको 5 नंबर मिल जाता है, वो छोटे शहर के मर्द को बाहर कर देती है, और छोटे शहर का लड़का जो है वो छोटी शहर की लड़की को बाहर कर देती है। तो अल्टीमेटली गाज तो गिरा छोटी लड़की पे, कमजोर लड़की पे, और परचम लेके आगे कौन है, शहर की लड़की। शहर की लड़की अपने ही घर में अपने भाई से दबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये है कहानी, और ये कहानी 83 में बंद हो गई क्योंकि हमने एक एजिटेशन कर दिया जी यहीं पर बगल में, है ना कोई ज्यादा दूर नहीं है। और उस एजिटेशन के बाद एक कमेटी बनी, उन्होंने कहा ओनली मेरिट, 7 साल तक मेरिट पे एडमिशन हो रहा है। तब तक लोगों को, देखिए कायनात भी क्या काम करती है, उनको क्या पता था कि सुरजीत मजूमदार जो हैं वो JNU-SU के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और 1988 में सईदानंद यहाँ पे फैकल्टी बन जाएंगे, और फैकल्टी बनते ही उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा जनूटा का। सर मुड़ाते ओले पड़े, है ना, सबसे छोटा और बन गया जनरल सेक्रेटरी, जिसको कोई सुन ही नहीं रहा है ना, क्योंकि भाई हरबंश मुखिया के सामने घिघी बंद हुई है और आप उनसे बात कर रहे हो। लेकिन
hats off to the training that we had here. We were never afraid of talking to our teachers, and they always welcomed us. I know of teachers, I would not name them, who are dead against any proposal with which we went. Surajit, we started conversing, and the good story is that we finally won. And from 1991, reservation again, not reservation, but and this deprivation index was resumed, which exists in some form, but finally one word. This index, the 4 indicator index that is now, has no sensitivity that I was talking about. It has been deliberately done so that the effect of regional deprivation could be minimal, and that also needs to be fought alongside. But first, because the matter is is the court, we got to defend even this. So thank you very much for a very patient hearing.